ये सर उनकी पिक्चर्स वगैरह जैसे लगाई हुई है और उनकी अचीवमेंट्स वगैरह। Separate autonomous entity है ना? in terms of our functioning. ब्रांच ऑफ Yeah? लाइक So we do policy research, and we do policy research in 5 thematic areas: governance, then economics, then international relations. Then we have fourth on this one, constitutional values and institutions, and fifth one is environment and natural resources. So I am the one who takes care of the environment wala research. तो इन दैट रिसर्च यू डू व्हाट ऑल थिंग्स? We take policies of the government of India or any other state governments, or maybe they are international policies. Study that whether they are implemented well or not, what needs to be done to improve them, what are the impacts of the policy designs. So basically it's a type Implementation. of analysis of the policies that has been done yet and what are the improvements we need to do. Yeah, but our we firmly believe that the policy making happens at the national level or the state level. Our parliamentarian or the legislators, they do the policy making process, right? Yes. But the ultimate beneficiary of the policies are the people in general, Welfare right? of the people, right? So we firmly believe that the policy making should be informed and inspired by what is happening on the ground. So what is happening on the ground, they should know, our legislators, whether they are in the Whether their policies are getting implemented correctly, and is it no, what exactly people want to do, or what the What people are the want, needs what of are the the needs. society, Yeah? right? So our legislator must know about it. They should be informed and inspired by what is happening on the ground. So, sir, you directly report to the legislature about all this analysis? We do share our findings with the legislator or other policymakers. Only legislator are not the policymaker; they are the final authority to do the legislation. But there are bureaucrats, there are some technocrats who are involved into the policy making process. They help to the legislator. So we also share our findings with them, and then we inform them. Ultimately, it's their call what to do or not, but we try to inform them. That's what we do. So basically, we just ensure the welfare of the society, right? Yes, the Together, ultimate is goal that. is to Ultimate goal is Yeah, that. yes. But we're doing this in thematic theme wise. So, for example, environment. So it's one particular theme, and under which we will be doing research only related to environment and its impact on people. So sir, around how many people are there like joined right now for the management and these all 5 analysis? So we have at least one person for each thematic area. Like you are for particularly For environment one. environment. Then we have some other people for other thematic areas. Some of them they come regularly here, but some of them are very senior people and they come occasionally, Yeah, like got it. once a week or once a month, depending on their seniority. So some of them very senior, so they do from wherever they are, but they do visit here. But size wise, we are very small organization right now. Working on the Once we were quite big, but currently we are size wise very small organization. But we have at least one But person. sir, per even the region. small one, it's like a very big initiative for us. Like honestly, when I came for this field visit, so my first reaction was that this foundation, like foundations, we have a stereotypical notion कि foundation is like बहुत वैसे सा मैनेजमेंट होगा उतनी ज़्यादा कंडीशंस वगैरह भी अच्छी नहीं होगी लेकिन व्हेन आई जस्ट केम इनसाइड एंड इट वाज लाइक द क्लीनलीनेस द इंफ्रास्ट्रक्चर इट वाज लाइक अ वेरी bombastic one. So it's a very good one and even a small initiative I would really like to appreciate from my side. I really liked it. Thank you. Yeah, it's a nice place. Yeah. It's your first time here? Yes. So. Yes. Have you seen our library? That's children's library. Yes. So. That's Yes, wonderful. Yeah, it's a wonderful library. I use that regularly for my sons.
is in The whole place is wonderful. yeah. Like You for can't the differentiate. children one ना the colors are used, they are very attractive, like Right, छोटे right. बच्चों के लिए ना it's हाँ, like हाँ, कि हाँ देखो cartoons भी हैं, and cartoons से ना the things that are depicted True, they are way more attractive, and फिर उसी attraction से they'll get to know the about the awareness, and obviously Rajiv Gandhi. Creative. Right. Yeah. No, true. It's professional design. That's it. Yes, sir. We are short on time, please. Yeah, please. It was Thank you pleasure so meeting much. you. So thank you for giving your precious. In Wonder Room. So this is the Wonder Room. No, this is not Wonder Room. Where you are the yes, Wonder Room. yeah. That is Wonder Room. So from there, I do art and craft. If you can see, like various things have been made, like this is limited. हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू। एरिया में एक एरिया है नाम पीलागढ़ी, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जैसे गंदगी है, पोल्यूशन है, और गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देती सारे प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम पता चली? नोबडी। आप एक बार रिपीट करते प्रॉब्लम। राइट, वेरी गुड। ऐसा नहीं दे डिड नॉट टेल, दे प्लीज क्लैप फॉर ध्वनि। प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का माइंडसेट कि लोग उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे या उसको बहुत बड़ी बात नहीं मान रहे थे गंदगी को, राइट। उसका सोल्यूशन आप लोगों ने क्या बताया? लोगों के साथ अवेयरनेस करना। बस मेरा एक सवाल है, आप लोग हम डस्टबिन रखेंगे, अगर गवर्नमेंट या कोई भी डस्टबिन रखेंगे तो इससे लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज होगा? अवेयरनेस भी तो करेंगे ना कि आप उसी डस्टबिन में डालो अपने गाड़ी। राइट, तो हमारा सोल्यूशन जो है हमारी प्रॉब्लम को टारगेटेड करके सोल्यूशन होना चाहिए, जनरल सोल्यूशन नहीं। दिस इज़ फॉर एवरीबडी, बिकॉज अभी हम वापस जाकर भी सोल्यूशन पे भी काम कर रहे होंगे ना। तो हमारी जो क्लियर प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है लोगों का माइंडसेट, तो सोल्यूशन माइंडसेट पे बनेगा, सिर्फ खाली डस्टबिन से नहीं होगा, राइट। थैंक यू। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक बाहर देश से एक बच्चा आया है, तो कुछ बच्चे उसका मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं, और एक बच्चे को रिलाइज हो रहा है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर वो स्टैंड लेगा तो साथ में उसका भी मजाक उड़ेगा, लोग उसको नहीं समझेंगे। बढ़िया, तुम बताओ। मैं ठीक। अरे तुमने इस नए लड़के को देखा है? कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अभी किसी के कपड़े मांग के आया है। हाँ, ये अजीब सा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसे सीखना चाहिए कि नया लड़का है, इसे दोस्ती करनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमारी क्लास में कैसा होता है कैसा नहीं होता। शायद तुम सही हो। पर मुझे क्या, अगर मैं कहूँगा तो मुझे भी क्या कहते हैं, मुझे भी बदतमीजी क्या कहते हैं, मुझे बदतमीजी से बोलेंगे, चिढ़ाएंगी मेरे को। ऐसा नहीं है, अगर तुम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो गलत होता रहेगा। पर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर हमें इसे रोकना चाहिए, वरना आगे जाके भी यही होगा और कई सारे बच्चे बुली होंगे। अगर मान लो तुम उसकी जगह होती, तुम्हारा कोई मजाक उड़ा तो मैं कैसे करता? हमें भी बुरा सॉरी। आपके पास टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा मैं शुभ और मेरा आज आपके सामने एक छोटा सा कार्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने विषय को निहित करेंगे। और हमारा यह दृष्टिकोण है कि हम अपनी बात को सीधा रखे बजाय किसी स्किट या प्ले करने के। धन्यवाद। इसमें आता है, वो एक छोटी सी कहानी थी जो एक विशाल नाम की लड़की के ऊपर आधारित थी। ये लड़का, इस लड़की के पास घर में पैसा नहीं था, खाने को खाना नहीं हो पाता था कई बार, तो अपने माता पिता की मदद कर
ये अपने घर चलाने में मदद करता था। इस वजह से क्योंकि अपने माता पिताओं के कार्यों में लगा रहता है दिन भर, ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था, वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। अब हम आपको इसके बारे में अपने चैलेंजेस जो हमने निकाले, प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस बताने जा रहे हैं। 2 रीजन हो सकते हैं, जैसे मालिक अपने मुनाफे के लिए कम पैसे दें। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी एक कारण हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे होते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो सब में कम बढ़ता है। लोग ज़्यादा है, नौकरी कम है। जो चीज़ लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती। उसके बाद मेन प्रॉब्लम हमारी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इनकी विशाल की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी और उसकी सब प्रॉब्लम्स इन सब ने बताई और उसके फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो उसकी रूट प्रॉब्लम थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रूट सॉल्यूशन हो सकता है जैसे कि हमने इनकी 3 सब प्रॉब्लम्स बताई। एक अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड हमारा फिर उसके अनएम्प्लॉयमेंट, देन उसके बाद हमारा लेस प्रॉफिट, उसके सब पार्ट कर दिए। एक डिस्गाइज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग हमारे ज़्यादा होते हैं और उसके बाद प्रॉफिट कम होता है, और उसको ही हमने फिर उसके बाद उसकी दूसरी पार्ट बताई जिसमें कभी कभार लोग या फिर ओनर्स अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दूसरे अपने एम्प्लॉयर्स की या फिर जो उनके नीचे काम करते हैं लेस पॉवर्टी वाले पीपल, उनकी इनकम या प्रॉफिट कम कर देते हैं। और थर्ड थी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वो उन्हें परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही जिसमें वो अपना एक्सेल कर पाएँ, जिसमें वो अपनी आगे बढ़ सकें। और आगे फिर जैसा कि आपको प्रियांश ने बताया कि जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस करके निकाला कि सॉल्यूशन ये होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको नए नियम सख्ती से लागू करवाने चाहिए और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। कुछ और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एक बेसिक सॉल्यूशन है हमारी लिटरेसी रेट का बढ़ना। जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसका यूज़ कर सकें, हमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके 2 एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लेबर लॉ, जॉय स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार होता ये है कि सरकार अपने कानून तो बना देती है पर कानूनों को देश में लागू नहीं कर पाती। कई बार क्या होता है कि कुछ गाँव में जहाँ पे कुछ विधायक होते हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा ही पावर होती है, वो उस जगह को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। कई बार कानून होते हैं जिस वजह से कि आपके कुछ रूल्स वहाँ किए जा सकते हैं, परंतु करप्शन, भ्रष्टाचार, हमारे अंदर घूसखोरी की एक आदत सी हो गई हमारे सिस्टम में, जो घूस के हमारे सिस्टम को खोखला कर दी जा रही है। इस पूरे सिस्टम की वजह से आज हमारे यहाँ पे जो कानून है वो ना बनने के तो गए हैं पर काम नहीं करते। किसी ने इस बात सही कही है, merely making law is not enough, but implementing them is more important. Thank you. Things differently. Unemployment, okay. Lack of awareness among about laws. आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या निकाली थी आपने? इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स निकाली, अनएम्प्लॉयमेंट, लेस सैलरी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ही होती, प्रॉब्लम एक ही होगी, आपने उसकी लेयरिंग करी। अगर आप देखो जो हमने डिस्कस किया सबके सामने, तो क्या प्रॉब्लम्स निकल के आए? सुना नहीं, किसी ने क्या बोला? करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉज। और आपके प्रेजेंटेशन जब आप प्रेजेंट कर रहे थे तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि विशाल को काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेट से कम पैसे क्यों है घर पे, या पेरेंट्स क्यों नहीं अर्न कर पा रहे? क्योंकि क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्यों है खराब? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? हाँ बताओ। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, जॉब्स कम है और उसे लेने के लिए बहुत लोग हैं, ज़्यादा है। राइट, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अब इससे इन्होंने शेयर किया कि लॉज नहीं है, बट लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन अवेयरनेस नहीं। तो यानी कि जो मेन प्रॉब्लम थी दैट इज अबाउट नॉट बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट, उन लॉज का पारित होने के बाद इम्प्लीमेंट ना हो पाना और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ना होना, वो रियल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम वो है। ठीक है, और उसका सोल्यूशन फिर क्या होगा?
क्या हो सकता है सजेस्ट करना होगा? हम इंक्रीज कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे और हॉस्पिटल्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या हम स्कूल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें टीचर्स की। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन बता रहे हैं ना? यस मैम। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने का, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमने निकाली है कि लोगों को लॉस के बारे में पता ही नहीं है या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बेसिक आईपीसी सेक्शंस बताना अगेंस्ट करप्शन या फिर रिलेटेड, तो या तो लॉस के बारे में लोगों को अवेयर करवाना या वो लॉस का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करना, ये सोल्यूशन। इज इट मेकिंग सेंस? राइट, लास्ट ग्रुप वेरी क्विकली। चीट मिली थी, हमें भी एक चीट मिली थी जिसमें दिल्ली में एक जगह है पीरागढ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमने उसी के प्रॉब्लम्स निकाली। तो हमारी पहली प्रॉब्लम पुलकित बताएगा। गंदगी इसलिए फैल रही है रोड और स्ट्रीट्स पे क्योंकि कोई सही जगह नहीं है कूड़े को फेंकने के लिए, और डस्टबिन हर एरियाज में नहीं है, जिसकी वजह से लोग गंदगी रोड और स्ट्रीट्स पे फैला रहे हैं। तो हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला, पहला ये है कि जो गवर्नमेंट है उनको ये MCD और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनको अपॉइंट करना चाहिए कि वो यहाँ पे डस्टबिन्स बनाए, एक पर्टिकुलर एरिया बनाए। और जैसे कि आप सबने वो गाड़ी तो आती है, वो गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, तो फिर जो हमारा जो कूड़ा है वो वहाँ पे आए और वो कूड़ा लेके जाए, ताकि वहाँ पे कूड़ा कम हो, पोल्यूशन कम हो और हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो कम हो। है कि अगर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है तो हमें अपने आप ही सफाई का इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने एरिया को स्वच्छ रखना चाहिए। बाकी हमें दूसरे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में। और अगर गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालती है तो हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए और वेज यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स और PIL फाइल करनी चाहिए इसके अगेंस्ट। थैंक यू। वी होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया। बाय द टाइम बसेज आर कमिंग, वी जस्ट लीव नाउ। बिफोर दैट जस्ट 2-3 मिनट्स, अगर किसी को भी चाहे 11 B, C या बाकी बच्चे जो भी हैं, किसी को भी अगर अपने आज के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी शेयर करना है, समथिंग जो आपके लिए अच्छा रहा या आपको कुछ भी जो सीखने को मिला या कुछ नई बात आज हुई, अगर आप शेयर करना चाहते हो, you can stand and share very quickly and then we will leave. Anything new which happened today या कुछ भी different experience आज हमें अगर and hearing about the greens and okay, thank you कशिश। इनके अलावा और कोई? सो मीनवाइल जब ब्रेक हुआ था तब हम लोगों ने राजीव गांधी फाउंडेशन एक्सप्लोर करा था सर की मदद से। सो हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पता लगी, राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या, ये क्यों है, ये क्या है, कि देखकर पता ही लग गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल और अच्छी जगह है। पर इसका मेन मोटिव कुछ और है। इसका मेन मोटिव है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और राजीव गांधी फाउंडेशन में सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे RGCS और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर आते हैं। लाइक ये सब के बारे में तो इधर बहुत से प्रोग्राम्स चलते हैं, तो बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इधर बहुत से प्रोग्राम्स है। इधर एक स्टोरी टेलिंग एरिया है जहाँ पे राजीव गांधी के बारे में बताया जाता है, और इधर एक मार्ग नाम से भी है जहाँ पे मेमोरीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ राजीव गांधी के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे उनका फर्स्ट लैपटॉप है और एवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स भी उधर दिखाया गया है। एक वहाँ पे गैलरी एरिया है जहाँ पे बेसिकली छोटे बच्चों को बिठा के उनकी क्रिएटिव लर्निंग करवाई जाती है थ्रू म्यूज़िक एंड मूवीज, और इससे वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और खेलते हुए वो लर्न कर लेते हैं। और ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे डिस्कशन रूम है जहाँ पे कि मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो सब लोग देते हैं आपस में। और एक आर्काइव रूम है जिसमें कि रिकॉर्ड ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह हर एक चीज़ रखी हुई है। और यहाँ पे एक मीडिया लैब भी है जहाँ पे ऑडियो वगैरह जैसे जो राजीव गांधी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे हम लोग अपने फंड वगैरह भी दे सकते हैं, जो भी छोटी मोटी हम लोग हेल्प करना है वो कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी भी उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। तो मीडिया लैब में बेसिकली
वहाँ पे क्या क्लोज करना है, ऑडियो कैसी रखनी है, वो सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक साइंस लैब भी है जहाँ पे बच्चों ने अपने ड्रोन से हैंडमेड बनाए हैं, हैंडमेड कैरम्स बनाए हुए हैं, हम लोग वहाँ पे देखने के आए हैं। और बहुत सही सही चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से वेस्ट चीज़ों से भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया है। और साइंस लैब इज लाइक वो जब अंदर जाते हैं तो एक लगता है कि आर्ट का एग्जीबिशन भी है और साइंस लैब बहुत ज़्यादा लाइक फंड